Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School 3B1 Mohali. Dear students, we are doing the 9th chapter, that is strategies for enhancement in food production. And in my previous lecture, I discussed about what are the various steps of plant breeding program, and we also discussed some of the important examples of high yielding varieties of crops like wheat, rice and sugarcane which are growing in our country. Students, today we will be discussing on applications and methods of plant breeding program. So students, let's start it. Dear students, plant breeding program that is used for obtaining disease resistant varieties, it is used for obtaining insect and pest resistant varieties, and it is also used for improving the food qualities in our crops. And various methods they are used for getting the disease resistant, insect resistant varieties, like selection method is used, mutation breeding is used, hybridization, and nowadays genetic engineering method that is also used for getting the disease resistant, insect and pest resistant varieties of our crops. Now students, a number of diseases they are affecting our plants. Some of the diseases they are caused by fungus, some are caused by bacteria and viruses. For example, brown rust of wheat, late blight of potato and red rot of sugarcane, these are caused by fungi. Black rot of crucifers, they are caused by bacteria, and tobacco mosaic and turnip mosaic, these are caused by viruses. So in one of the better way to prevent the occurring of diseases in the crops, that is to make them disease resistant. तो एक बहुत अच्छा तरीका यही है बच्चों कि जिस तरीके से हम अपने जो क्रॉप्स हैं उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम हैविंग दीज डिजीजेस इज़ टू मेक देम डिजीज रेजिस्टेंट. भी उन्हें डिजीज रेजिस्टेंट जो है वो बना दिया जाए सो दैट दे डोंट सफ़र फ्रॉम दीज डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय द वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. So the steps in plant breeding for disease resistant crops. पहला स्टेप है स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंट. हमने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के भी स्टेप्स डिस्कस किए हैं और इसमें पहला स्टेप यही था स्टूडेंट्स जर्म प्लाज्म की कलेक्शन. और जर्म प्लाज्म की कलेक्शन हम कैसे करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की सारी वैरायटीज़ को कलेक्ट करके इन द फॉर्म ऑफ सीड्स हम अपना जर्म प्लाज्म कलेक्ट करते हैं. जर्म प्लाज्म कलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी किस पर्टिकुलर वैरायटी के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट. सो स्क्रीनिंग जर्म प्लाज्म फॉर रेजिस्टेंस. सेकेंड स्टेप है जब हम स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जब हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लिया है, हमने 2 डिजायर्ड वैरायटी सिलेक्ट की हैं इन विच वी हैव फाउंड द डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स, देन वी विल क्रॉस दोज 2 varieties, and these 2 varieties which are selected after screening they are the parents. तो selected parents की अब students क्या की जाएगी, hybridization की जाएगी, उनको आपस में क्रॉस करवाया जाएगा. So hybridization that is the most common method of creating the genetic variations, and it is crossing of 2 or more types of plants for bringing the desired traits together in the progeny. उसके बाद स्टूडेंट्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन और इवेल्युएशन होगी हाइब्रिड्स की. ठीक है कि हाइब्रिड्स के अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स आए भी हैं कि नहीं आए. सो सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स इज पिक्ड अप सीड्स ऑफ ओनली दोज प्लांट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन विच हैव द डिजायर्ड कैरेक्टर्स. तो जिन हाइब्रिड्स के अंदर डिजायर्ड कैरेक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स उनकी फिर सेल्फिंग की जाएगी ताकि उनके अंदर वो जो जीन्स हैं दे should come in the homozygous states. For example students, grain length in rice that is variable. कुछ longer grains होते हैं, कुछ intermediate grains होते हैं और कुछ shorter grains होते हैं. और हमारी preference हमेशा क्या होती है, longer grains की होती है. तो longer grains वाली जो varieties हैं उनको हम select करते हैं, उनको आपस में cross करते हैं ताकि जो hybrid obtain हो उसके अंदर ये desired character आ सके.
और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स टेस्टिंग एंड द रिलीज ऑफ द न्यू वेराइटीज। तो जो न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स हैं दे विल बी इवेल्युएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, जैसे क्वालिटी, उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स आई हैं या नहीं आई हैं। एंड दिस एवेल्यूशन वी ऑल नो दैट इट इज़ डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड। फिर उन्हें एक्चुअल जो फील्ड्स में उनको ग्रो किया जाता है और उसके बाद IARI जो है वो उस वेराइटी को रिलीज करती है विद अ न्यू trade name by the permission of the government. So we have done all of these steps. So same steps that is followed for obtaining the disease resistant varieties. So examples हैं students, wheat के केस में हिमगिरी है। हिमगिरी जो है that is found to be resistant to leaf and stripe rust and hill bunt. Second, ब्रासिका में students variety है पूसा स्वर्णिम which is resistant towards the disease white rust. Third, cauliflower के केस में students variety है पूसा शुभ्रा and पूषा snowball and they are found to be resistant to black rot and curl blight black rot. Similarly, काउपी में वेराइटी है स्टूडेंट्स पूसा कोमल एंड इट इज़ रेजिस्टेंट टू बैक्टीरियल ब्लाइट। और चिली के अंदर वेराइटी है स्टूडेंट्स पूसा सदाबहार जो कि रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स डिजीजेस विच आर कॉज्ड बाय चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लीफ कर्ल डिजीज। सो ये एग्जाम्पल्स हैं वेराइटीज़ के विच आर obtained by the breeders and they are resistant to a number of diseases. सो ये स्टूडेंट्स वेराइटीज़ के नाम एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमने एक एक करने हैं हर एक क्रॉप के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ब्रीडर्स जो हैं दे आर मेकिंग सच वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स विच आर ऑल्सो फाउंड टू बी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द अटैक ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो है होस्ट प्लांट में इट मे बी ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कई बारी प्लांट की मॉर्फोलॉजी ऐसी है कि उस पर कोई पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर रहा। कई बारी उसके अंदर कुछ ऐसे पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं जो कि उसे बनाते हैं इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस। तो हमने इस तरीके की जीन्स को आइडेंटिफाई करना है और इस तरीके की जीन्स को हम दूसरी स्पीशीज़ में ऐड करके वी कैन ऑल्सो मेक दैम इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हेयरी लीव्स in several plants they are associated with resistant to insect pest. For example, resistance to jassids in cotton and cereal leaf beetle in the wheat. तो छोटे छोटे हेयर्स का लीव्स पे होना ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है जो कि इन क्रॉप्स को रेजिस्टेंट बना रहा है टुवर्ड्स द इंसेक्ट पेस्ट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बायोकेमिकल अगर हम देखें, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे हाई एस्पार्टिक एसिड का होना, लो नाइट्रोजन का होना या शुगर कंटेंट का होना इन दी मेज, इट लीड्स टू रेजिस्टेंट टू मेज स्टेम बोरस। तो जिन मेज की वैरायटीज़ के अंदर एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, नाइट्रोजन का कंटेंट कम है, शुगर का कंटेंट कम है, दे आर फाउंड टू बी रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द स्टेम बोरस। सिमिलरली स्मूथ लीव्ड and nectarless cotton varieties they do not attract the bollworms. So इस तरीके के ये जो morphological, biochemical और physiological characteristics हैं they are making these crops resistant towards the insect and pest resistant. सो ये देखो स्टूडेंट्स दिखाया गया है, दिस इज़ दी हाई एस्पार्टिक जो एसिड है या लो शुगर कंटेंट है एंड लो नाइट्रोजन कंटेंट है इन दी मेज दैट लीड्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ द मेज टू दी स्टेम बोरस। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेम्स के अंदर एस्पार्टिक एसिड का कंटेंट लो होगा या शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्टेम बोरस जो हैं वो ज़्यादा अटैक करेंगे। इसी तरीके से देखो लीव्स पे छोटे छोटे हेयर्स का होना ये भी इन्हें रेजिस्टेंट बनाता है टुवर्ड्स द अटैक ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। सो प्लांट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दे आर यूजफुल फॉर मेकिंग देम इंसेक्ट और पेस्ट रेजिस्टेंस। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स क्रॉप्स में। फॉर एग्जाम्पल ब्रासिका के केस में एग्जाम्पल है वैरायटी जो डेवलप हुई है पूसा गौरव एंड इट इज़ फाउंड टू बी रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द एफिड्स। सिमिलरली फ्लैट बीन्स में स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है वैरायटी का पूजा Sem and Pusa Sem 3 and they are found to be resistant towards jassids, aphids and fruit borer. And okra के केस में students varieties है पूसा
Savani and Pusa A4, and they are found to be resistant towards the shoot and the fruit borers. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं फॉर इम्प्रूविंग दी फूड क्वालिटीज़. ठीक है, फूड क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा रहा है बिकॉज वी सी दैट कि जो हमारे डाइट्स हैं दे आर लैकिंग इन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. पर्टिकुलरली आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी, आयोडीन एंड जिंक डेफिशिएंसी, दैट इज द कॉमन डेफिशिएंसीज विच इज सीन इन द चिल्ड्रन. एंड it increases the risk of diseases. These deficiency, it increases the risk of a number of diseases. They also reduce the lifespan, and they also reduce the mental abilities of the individuals. A far greater number, 3 billion people, they suffer from micronutrient, protein and vitamin deficiencies or hidden hunger because these peoples, they cannot afford to buy enough fruits and vegetables, legumes, fish and meat, जो कि मोस्टली न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वाइटामिन्स जो हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट. एंड मोर देन 840 million people in the world, they do not have adequate food to meet their daily food and nutritional रिक्वायरमेंट्स. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं, अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनहांस कर दें तो इस तरीके से हम ये डेफिशिएंसीज को कवर अप कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे सीरियल्स हैं उनके अंदर अगर अमाइनो एसिड्स का कंटेंट जो है वो बढ़ा दिया जाए, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर किसी विटामिन को इनरिच कर दिया जाए, तो इस तरीके से व्हेन दीज पीपल दे विल ईट दीज सीरियल्स, तो उनकी बाकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो भी कवर अप हो सकती हैं. सो इसमें एक स्टूडेंट ये तरीका है, दिस इज़ नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन. तो हम न्यूट्रिएंट क्वालिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन. सो बायोफोर्टिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग crops with higher levels of vitamins and minerals, higher protein and healthier fats. ठीक है, तो हमने इस तरीके की क्रॉप्स जो हैं वो फॉर्म करनी है जिनके अंदर विटामिन का कंटेंट ज़्यादा है, मिनरल्स का कंटेंट ज़्यादा है, जिनके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स हैं और हेल्थियर फैट प्रेजेंट है. Breeding for improved nutritional quality, that is undertaken with the objectives. क्या objectives होते हैं बायोफोर्टिफिकेशन के? पहला होता है कि उनका प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी को एनहांस किया जाए, ऑयल का कंटेंट और उसकी क्वालिटी को एनहांस किया जाए, विटामिन कंटेंट्स को एनहांस किया जाए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट को एनहांस करना. तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के, विच आर used for improving the nutritional quality. For example, students, vitamin A enriched carrots बनाई जा रही हैं, spinach बनाया जा रहा है, pumpkin जो है they have been made, vitamin C enriched bitter gourd जो है वो formed किया गया है, mustard, tomato, iron और calcium enriched spinach, protein enriched beans, they have been formed by the breeders. सो क्रॉप वेराइटीज एग्जाम्पल्स, कुछ क्रॉप वेराइटीज़ के जिनके अंदर इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी है. सबसे पहला है लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एनरिच्ड मेज़. तो मेज़ की ऐसी वेराइटीज़ बनाई गई हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड्स का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ किया गया है, स्पेशली लाइसिन और ट्रिप्टोफैन. हाई प्रोटीन रिच वीट बनाया जा रहा है. आयरन फोर्टिफाइड राइस जो है वो फॉर्म्ड किया जा रहा है. विटामिन सी एनरिच्ड बिटर गार्ड्स, टोमेटोज, मस्टर्ड्स दे आर मेड. आयरन और कैल्शियम एनरिच्ड स्पिनच बनाया जा रहा है, बाथू बनाया जा रहा है. विटामिन ए एनरिच्ड कैरेट, spinach and pumpkins, they are made. So these are the various applications of biofortification. नेक्स्ट है टॉपिक स्टूडेंट सिंगल सेल प्रोटीन. तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये नहीं है द प्रोटीन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये एक्चुअली जो टर्म है दैट इज़ मिसलीडिंग. एक्चुअली सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं वो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से तैयार किए जा रहे हैं. नाउ व्हाई? वी ऑल नो दैट डिमांड जो है वो फूड की इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द इंक्रीज इन ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन.
The shift from grain to meat diets, it does not solve our problem because 6 to 10 kg grains required हैं for obtaining 1 kg of meat by the animal farming. मतलब अगर हमने 1 kg नॉन वेजिटेरियन डाइट को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हमें 10 टाइम्स जो है वेजिटेरियन ग्रेन्स चाहिए, वेजिटेरियन डाइट चाहिए to obtain what 1 kg of non-vegetarian diet. More than 25% जो है human population that is suffering from the hunger and malnutrition. तो one of the alternate sources of proteins for animal as well as for the human beings, that is single cell protein. We all know that microorganism students हम use कर रहे हैं फॉर ऑप्टेनिंग और फॉर प्रिपेयरिंग अ नंबर ऑफ फर्मेंटेड फूड्स. फॉर एग्जाम्पल चीज़ को बनाने के लिए, इडलीज को बनाने के लिए, जलेबीज बनाने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही स्टूडेंट्स लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, उनसे प्रोटीन्स जो हैं वो ऑप्टेन्ड किए जाते हैं. दीज आर नोन एज व्हाट, सिंगल सेल प्रोटीन्स. फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी है, मशरूम्स हैं, ठीक है, इनकी लार्ज स्केल कल्टिवेशन की जाती है एंड दे आर a good source of proteins and they are known as what, single cell proteins. So single cell proteins जो हैं they are produced from unicellular as well as from the multicellular organisms like algae, fungi, yeast, bacteria. These are used for obtaining the single cell proteins. सम लो कॉस्ट सबस्ट्रेट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं. यूजुअली जो वेस्ट होते हैं, जैसे पोटैटो इंडस्ट्री है या शुगर केन इंडस्ट्री है, उनका जो वेस्ट है उसी वेस्ट को यूज़ करके हम जो माइक्रोबियल ग्रोथ करवा रहे हैं एंड वी आर ऑब्टेनिंग व्हाट, सिंगल सेल प्रोटीन. सिंगल सेल प्रोटीन्स जो हैं दे आर रिच इन हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स, दे आर लो इन फैट कंटेंट, सो दे आर अ वेरी desirable human food. And SCP, single cell protein, should not reduce the pressure. It also reduces the pressure on the agricultural production system for the supply of proteins and it can also reduce the environmental pollution. तो single cell protein जो है वो थोड़ा बहुत जो burden है हमारी agricultural production पे उसको थोड़ा सा relieve कर रहे हैं, plus ये environmental pollution को भी reduce करते हैं. Now how they are reducing the environmental pollution, मैंने बताया कि जो भी waste होता है industries का, जैसे potato industry का जो वेस्ट है, स्टार्च वेस्ट है, या शुगर केन इंडस्ट्री में जो मोलासेस हैं, उन्हीं वेस्ट की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लार्ज स्केल क्या कर रहे हैं, ग्रोथ करवा रहे हैं और उनसे ये सिंगल सेल प्रोटीन्स जो है वो ऑब्टेन करा रहे हैं. तो ये जो वेस्ट था दैट वाज कॉजिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन बट वी आर यूजिंग दिस वेस्ट टू ऑब्टेन द सिंगल सेल प्रोटीन्स. तो इस तरीके से ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, माइक्रोब जैसे स्पिरुलिना है जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको ग्रो किया जा रहा है ऑन मटेरियल्स लाइक वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्ट्रॉ के ऊपर, मोलासेस के ऊपर, एनिमल मेन्योर के ऊपर, इवन सीवेज के ऊपर देखो इन माइक्रोब्स को ग्रो किया जा रहा है और उनसे प्रोटीन ऑब्टेन किए जा रहे हैं विच आर रिच इन मिनरल्स, विच आर रिच इन फैट्स, विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज vitamins. So कुछ माइक्रोब्स जो कि यूज किए जाते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिंगल सेल प्रोटीन्स आर सियानोबैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल स्पिरुलिना. स्पिरुलिना के स्टूडेंट्स कैप्सूल्स जो हैं दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. बैक्टीरिया में मिथैलोफिलस, मिथैलोट्रोफस यूज किया जा रहा है. यीस्ट के केस में कैंडाइटा, यूटिलिस और फिलामेंटस फंजाई में फ्यूजेरियम ग्रामिनियम जो है दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द सिंगल सेल प्रोटीन. So what are the advantages of single cell protein? पहला advantage है student that it is rich in high quality protein and it is poor in fat content. It reduces the pressure on the agricultural production systems for the supply of the required proteins. Third, it is based on industrial effluents, so it also minimizes the environmental pollution. And fourth, it can be obtained or it can be produced in laboratories throughout the year. ये किसी particular climatic condition के ऊपर इनकी production जो है वो dependent नहीं है. So they can be produced throughout year in the laboratories. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वेरियस मैथड्स विच आर यूज्ड फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम. तो कई मैथड्स जो यूज़ किए जाते हैं, इसमें से एक मैथड को स्टूडेंट मैंने बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन.
हाइब्रिडाइजेशन में जहाँ पे हम दो डिज़ायर्ड जो वेराइटीज़ हैं विच आर हैविंग द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स और टू पेरेंट्स विच आर हैविंग द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स, दे आर क्रॉस्ड विद वन अनदर टू ऑब्टेन द हाइब्रिड। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम कई जो मेथड्स फॉलो करते हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन हो गया, बैगिंग हो गया, टैगिंग हो गया, डस्टिंग हो गया ऑफ द pollen grains, and then the rebagging. So I have discussed this in detail. Today I will be giving you a brief introduction of the rest of the methods, like selection method use किया जा रहा है, mutation method जो है वो use किया जाता है, polyploidy जो है वो use किया जा रहा है, और even genetic engineering जो है that is also used in the plant breeding program. पहला मेथड है स्टूडेंट सिलेक्शन, और सिलेक्शन जो है दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, सबसे पुराना मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। सिलेक्शन के टाइम क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो इंडिविजुअल प्लांट्स हैं या ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं उसमें से उन प्लांट की सिलेक्शन की जाएगी जिसके अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, जो हमें अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि हम नंबर ऑफ क्रॉप्स में से एक ऐसी क्रॉप सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके फ्रूट्स जो हैं दे आर मोर जूसी, दे आर हैविंग हाई शुगर कंटेंट एंड दे आर हैविंग लो फाइबर्स। तो इस तरीके से जब हम उस वैरायटी की या उस पर्टिकुलर प्लांट की विद डिजायर्ड कैरेक्टर्स सिलेक्शन करते हैं तो उसकी जो है ये सिलेक्शन जो मेथड है स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट डन फॉर ओनली वन जनरेशन, एक्चुअली दिस सिलेक्शन मेथड दैट इज़ डन फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशन्स। और उसके बाद जो है स्टूडेंट उसकी सेल्फिंग की जाएगी ताकि उसके अंदर वो जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उसकी जो जीन्स हैं वो होमोजाइगस स्टेट में आ जाएं। सो सिलेक्शन इज डन फॉर एवरी न्यू जनरेशन 4 to 5 टाइम्स। और सिलेक्शन जो है स्टूडेंट्स इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक मास सिलेक्शन है जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में किया जाता है, और दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन जो कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में किया जाता है। सो सिलेक्शन सबसे ओल्डेस्ट मैथड है। सिलेक्शन में हम बेस्ट वैरायटी को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसकी फिर क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन हमें पता है अचानक किसी के अंदर एक चेंज आ जाना जो कि हेरिटेबल है, दैट इज नोन एज म्यूटेशंस। और म्यूटेशंस जो म्यूटेजेंस हैं, म्यूटेजेंस वो केमिकल्स हैं जो कि म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं। जैसे कई फिजिकल एजेंट्स हैं, कई केमिकल एजेंट्स हैं, कई रेडिएशंस हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है टू इंड्यूस द म्यूटेशंस। कई केमिकल्स हैं जैसे एक्रिडीन डाइज हैं, दे आर यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग द म्यूटेशंस। तो इन म्यूटेजेंस की हेल्प से स्टूडेंट्स अ नंबर ऑफ वेराइटीज दे are made. For example students, in moong bean, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildews they were induced by mutations. तो मूंग बीन के अंदर स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टेंस है प्लांट का टूवर्ड्स द येलो मोजेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू, ये म्यूटेजेंस की एक्सपोजर के थ्रू आया है या थ्रू म्यूटेशंस आया है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस है टू येलो मोजेक वायरस इन भिंडी, it was transferred from a wild species and it has resulted in a new variety of bhindi which is known as Parbhani क्रांति। तो ये जो स्टूडेंट्स नई वेराइटीज़ बनी हैं, ओखरा की बनी है, भिंडी की बनी है या मूंग बीन की बनी है, दे हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशंस। और स्टूडेंट एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वीट का, है शरबती सुनारा। शरबती सुनारा हमें पता है इट इज़ अ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट, एक स्वेमी ड्वार्फ और वाटर लॉजिंग म्यूटेंट वेराइटी है। और ये वेराइटी स्टूडेंट्स सोनारा 60 से ऑब्टेन हुई है। सोनारा जो 60 वेराइटी है वो एक मैक्सिकन वेराइटी है और उसके जो ग्रेन्स हैं दे आर रेड इन कलर। और ये जो रेड कलर के ग्रेन्स थे स्टूडेंट्स, इसको हम इंडियंस जो हैं वो पसंद नहीं करते थे। जो इसका फ्लोर था दैट वाज रेड इन कलर। तो सोनारा 60 के ऊपर गामा रेज जो हैं वो फॉल करवाई गई और उससे एक नई वेराइटी ऑब्टेन की गई विच इज़ शरबती सोनारा। और ये नई वेराइटी जो है ये इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ने डेवलप की है। और ये वेराइटी डेवलप हुई है विद द हेल्प ऑफ द साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, जिसे कि फादर भी माना जाता है ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। सो सोनारा 64 वेराइटी जो है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ म्यूटेजेंस ऑन द सोनारा 60 वेराइटी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलीप्लॉइडी। सो पॉलीप्लॉइड हमें पता है पॉलीप्लॉइड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर 2 से ज़्यादा सेट्स हैं
क्रोमोसोम्स के। और पॉलीप्लॉइड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड्स, एक होते हैं एलोपॉलीप्लॉइड्स। ऑटोपॉलीप्लॉइड्स का मतलब है एडिशन ऑफ वन और मोर एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम सेम स्पीशीज। अगर एक ही स्पीशीज के जो सेट्स हैं क्रोमोसोम्स उनको ऐड किया जाता है और दे आर मल्टीप्लाइड, दैट इज नोन एज ऑटोपॉलीप्लॉइड। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज ए है, उसकी अगर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बार बार ऐड करते हैं तो उससे क्या बनेंगे, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑटो ट्रिप्लॉइड, ठीक है, दिस इज ऑटो टेट्राप्लॉइड, सिमिलरली ऑटो पेंटाप्लॉइड एक्सेट्रा। और जो एलोपॉलीप्लॉइड्स हैं दे हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इनके अंदर डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम्स जो हैं वो मल्टीप्लाई किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जैसे ए बी बी, ए एक वेराइटी है, बी दूसरी वेराइटी है, और ए बी वेराइटी को अगर क्रॉस करके एक नई वेराइटी की गई है और उसके क्रोमोसोम्स को डबल किया गया है, सो दैट इज नोन एज व्हाट, एलोपॉलीप्लॉइड। सो एलोपॉलीप्लॉइड में जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ऑटोपॉलीप्लॉइड में जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर ऑफ ओनली वन स्पीशीज। और स्टूडेंट्स ये जो पॉलीप्लॉइडी है ये कैसे इंड्यूस की जाती है, वी ऑल नो दैट इसे इंड्यूस किया जाता है बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट विच इज कॉल्चीसिन। और स्टूडेंट सबसे पहला जो एलोपॉलीप्लॉइड है वो ऑब्टेन हुआ था बाय द साइंटिस्ट कार्पेनचेंको एंड दैट पॉलीप्लॉइड वाज रेफेनोब्रासिका। और इसे दो वेराइटीज रेफेनस सेटाइवस और ब्रासिका ओलेरिसिया इनको क्रॉस करके बनाया गया था। एक्चुअली जो कार्पेनचेंको था वो एक ऐसी वेराइटी, एक ऐसी हाइब्रिड वेराइटी चाहता था जिसके अंदर रेडिश का कैरेक्टर आ जाए और कैबेज का कैरेक्टर आ जाए। कैबेज में हमें पता है कि उसका जो अबव ग्राउंड पार्ट एडिबल है और रेडिश के केस में जो अंडरग्राउंड पार्ट है दैट इज एडिबल। तो वो एक ऐसी वेराइटी चाहता था जिसके अंदर रेडिश भी आए, कैबेज भी आए, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ऑपोजिट जो है वो कॉम्बिनेशंस मिले, बट ही गॉट अ एलोपॉलीप्लॉइड. So the first एलोपॉलीप्लॉइड that was obtained by the scientist Karpenchenko and it was Raphanobrazzica. स्टूडेंट्स ऑटो जो ट्रिप्लॉइड्स हैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनानाज है. ये जो सीडलेस बनानाज जो हम खाते हैं दीज आर एक्चुअली ऑटो ट्रिप्लॉइड्स. ठीक है. सो हाइब्रिड जो बनानाज हैं दे आर ट्रिप्लॉइड्स, दे आर स्टेराइल, दे डोंट हैव एनी सीड्स. और जो पहले स्टूडेंट्स जो बनानाज थे दे वर डिप्लॉयड, दे वर हैविंग सीड्स, सो दे वर नॉट प्रेफर्ड. सो इसीलिए जो आजकल जो जितने भी बनानाज हैं दीज आर ऑल व्हाट, ऑटो ट्रिप्लॉइड्स, दे आर स्टेराइल, दे डोंट हैव एनी सीड्स and they are obtained by the technique of polyploidy. नेक्स्ट स्टूडेंट्स वीट जो है, जो हम कॉमन ब्रेड वीट जो खाते हैं दैट इज़ अ हेक्साप्लॉइड वैरायटी. ठीक है, वो हेक्साप्लॉइड वैरायटी है और उसे भी ऑब्टेन्ड किया गया है बाय अ नंबर ऑफ क्रॉसेस एंड कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट. स्टूडेंट्स कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से हम क्रोमोसोम्स को डबल कर सकते हैं. तो ये जो कॉमन ब्रेड वीट है दिस इज ट्रिटिकेल. दिस इज व्हाट, ट्रिटिकेल. साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम. तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिटिकेल है या ट्रिटिकम एस्टाइवम है ये एक हेक्साप्लॉइड वैरायटी है और ये देखो कैसे मल्टीपल क्रॉसेस के द्वारा ये ऑब्टेन्ड हुई है. सबसे पहला जो ट्रिटिकम बॉयटिकम है उसमें म्यूटेशन हुआ, उससे एक वैरायटी बनी ट्रिटिकम मोनोकुकम. ट्रिटिकम मोनोकुकम को फिर क्रॉस करवाया गया एजिलोप्स स्पेल्टॉइड्स के साथ, तो उससे एक हाइब्रिड बना. दैट हाइब्रिड वॉज स्टेराइल. फिर उसके क्रोमोसोम्स को डबल किया गया बाय द कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट. तो कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, डबल हो जाते हैं. तो उससे वैरायटी बनी ट्रिटिकम टर्जिडम. ट्रिटिकम टर्जिडम में म्यूटेशन आने से बनी है वैरायटी ट्रिटिकम ड्यूरम. और ट्रिटिकम जो ड्यूरम है वो एक टेट्राप्लॉइड वैरायटी है वीट की और इससे ये जो पास्ता है, नूडल्स हैं, वो ट्रिटिकम ड्यूरम से तैयार किए जाते हैं. ट्रिटिकम टर्जिडम जो है उसको क्रॉस करवाया गया विद एजिलोप्स स्क्वेरोसा और उससे हाइब्रिड बना. दैट हाइब्रिड वॉज स्टेराइल. फिर यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी यूज़ की गई. कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट से उसके क्रोमोसोम्स को डबल किया गया और इस तरीके से ये जो कॉमन ब्रेड वीट है विच वी आर यूजिंग दैट इज ट्रिटिकम एस्टाइवम दैट इज ऑब्टेन्ड.
सो स्टूडेंट्स, लास्ट मेथड है दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी ज़्यादा जो है उसको डिटेल में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम एक या एक से ज़्यादा जीन्स जो हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे बाकी मेथड्स में हमने देखा कि हम दो डिफरेंट वैरायटीज़ को कम्प्लीटली जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कोई अच्छी जीन मिलती है तो उस जीन को उसमें से आइसोलेट करके उसे किसी दूसरी वैरायटी के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है, एंड इट इज़ बीइंग अप्लाइड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, पर्टिकुलरली जो इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड है, इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंस है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी स्ट्रेस है, और मेल स्टेरिलिटी है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, these are obtained by the technique of genetic engineering. So students, this was all about the various applications and methods of plant breeding program. I hope students कि ये topic जो है वो तुम सबको clear हुआ होगा. Next students, we will discuss about the technique plant tissue culture. So thank you all of you.